Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. In today's class we will be studying unitary method, that is the third chapter related to ratio and proportion, that is chapter 8. In this particular topic we will be discussing two variations, that is direct and indirect variations, which is also known as inverse variation. In today's class we will be studying direct variation, and in the next upcoming videos we will start on with inverse variation. Do remember to copy all the notes in your notebook and solve all the questions you are being provided, and watch the video till the end for better explanation of your video. It is very important here is that your exam is going to be conducted very soon, so prepare very well for your exam. If you have any doubt anywhere, kindly message me or comment me to make a separate video on that particular topic, so that if you have doubt on any particular topic you can make it clear and score good in your examination. So without wasting any more time, let's straight start our today's video, that is unitary method. Thank you. So let's start on with unitary method. This is the next chapter after proportion. In the first we studied ratio, second proportion, and in the third part we are studying unitary method. So what is unitary method? Unitary method is, as the name suggests, it is a method in which the value of unit quantity, unit means, unitary method is made from the word unit. Unit means one. Unit means one. The method in which the value of unit quantity is first obtained and the method in which the value of unit quantity is first obtained, and then we can find out any required quantity. So this is basically unitary method. What is unitary method? Unitary stand for unit means one. The method or method in which the value of unit quantity, unit means one, सबसे पहले एक quantity का हम लोग value निकालते हैं, and then we can find out the quantity of as many required quantities. This is the unitary method. It is a very easy chapter. इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है. There are numerous questions which we will learn in the upcoming videos and today's also. Unitary method. Let's take first example. If 5 chocolates cost rupees 25, find the cost of one chocolate. अगर 5 चॉकलेट का प्राइस जो है वो 25 है, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा? सबसे पहले एक चॉकलेट, दिस मीन्स वी आर इन यूनिटरी मेथड. यूनिट मीन्स वन. सबसे पहले एक चॉकलेट का प्राइस निकालेंगे. सबसे पहले एक चॉकलेट का प्राइस निकालेंगे. तो आप सबको मालूम है कि एक चॉकलेट का प्राइस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? वी विल डिवाइड. व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल क्वांटिटी वी divide, and whenever we have to find out large quantity we multiply. So we have to find the cost of one chocolate. ये एक चॉकलेट 5 चॉकलेट से कम है, इसलिए अगर कम हो तो डिवाइड करेंगे. अगर यहाँ पर 6 चॉकलेट रहता तो एक का निकाल कर 6 के लिए मल्टीप्लाई करते. तो 5 चॉकलेट्स का कॉस्ट है 25. तो वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज इक्वल टू ₹25 डिवाइडेड बाई 5. 5 जा 25. What is the cost of one chocolate? ₹5. In the same manner, if I ask you now, find the cost of 10 chocolates.
10 चॉकलेट्स का प्राइस बताइए। जब एक चॉकलेट का प्राइस निकालिए तो अब क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 10 chocolates is equal to ₹5, that is एक चॉकलेट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 10 is equal to ₹5, 10 जा 50 rupees। तो दिस इज यूनिटरी मेथड, द मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड। सबसे पहले हम लोग एक क्वांटिटी का निकाले कि एक चॉकलेट का प्राइस कितना आया, ₹5, एंड देन वी कैन फाइंड आउट एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग कितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितना था, यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी था 10 चॉकलेट। तो 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक चॉकलेट का प्राइस 5 और हमको निकालना है 10 चॉकलेट जो कि ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 5, 10 जा 50 rupees। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। In unitary method is divided into two parts. We will learn unitary method in two parts. Unitary method in two parts. And the first is direct variation, and the second one is indirect variation. यूनिटरी मेथड को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनडायरेक्ट वेरिएशन। आप आगे के हायर क्लासेस में मेनली इन कंपटीशन आप इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस भी पढ़िएगा। तो हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड को दो पार्ट में बांटेंगे, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। चलिए पहले दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज वेरिएशंस एंड देन वी मूव ऑन टू आवर टुडेज वीडियो इंट्रोडक्शन, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये चॉकलेट्स का जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन है, 5 चॉकलेट का प्राइस 25, 10 चॉकलेट्स का प्राइस कितना आ गया 50। अगर चॉकलेट्स ज्यादा होंगी तो प्राइस भी ज्यादा। अगर आप एक चॉकलेट खरीदते हैं 5 रुपए में, अगर आपको 10 चॉकलेट खरीदने चाहिए तो आपको कितना पैसे लगेगा 50 रुपीज। अगर 20 चॉकलेट खरीदने चाहिए तो कितना लगेगा 100 रुपीज। तो आप अगर ज्यादा चॉकलेट खरीदते हैं तो आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर 5 चॉकलेट का प्राइस है 25 तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना आया 5, 2 चॉकलेट का 10, 3 चॉकलेट का 15, 4 चॉकलेट का 20। इस तरीके से अगर ज्यादा चॉकलेट तो ज्यादा प्राइस, कम चॉकलेट तो कम प्राइस। तो डायरेक्ट वेरिएशन हमको क्या बताता है, फर्स्ट में डायरेक्ट वेरिएशन two quantities A and B are said to vary directly if the ratio of A by B remains कांस्टेंट। क्या कहता है डायरेक्ट वेरिएशन, कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी कब कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है, जब दोनों का रेशियो आपस में कांस्टेंट हो, दैट इज ए बाई बी इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखें तो क्या कह सकते हैं, द प्राइस ऑफ चॉकलेट vary directly as number of chocolates। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चॉकलेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स वेरी डायरेक्टली एज नंबर ऑफ चॉकलेट्स। द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स वेरी डायरेक्टली एज नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो चॉकलेट भी ज्यादा, प्राइस कम तो चॉकलेट कम। तो क्या लिख सकते हैं,
chocolates, more price, less chocolates, less price. I hope it is clear to everyone. ठीक है, अगर वही एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या एग्जाम्पल था, 5 चॉकलेट्स का प्राइस कितना था, 25। अगर दो ये क्वांटिटी ए मान ले, इसको क्वांटिटी बी मान ले, और अगर दोनों का रेशियो निकाल लें तो 5/25 क्या आएगा, 1/5। सेकेंड कंडीशन में क्या था, 10 चॉकलेट्स था और 10 चॉकलेट्स का हमने कितना प्राइस निकाला था, ₹50। अगर दो इसको क्वांटिटी ए इसको क्वांटिटी बी मान ले, दोनों का रेशियो 10/50, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया क्वांटिटी, 1/5। क्या दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है? अगर दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, दिस मीन्स दैट द क्वांटिटी इज वेरिंग डायरेक्टली। मोर चॉकलेट्स मोर प्राइस, लेस चॉकलेट लेस प्राइस, मोर सेम है और लेस सेम है, तो ये कैसा प्रोपोर्शन, कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन यूनिटरी मेथड। अब देखते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। इनडायरेक्ट वेरिएशन टू क्वांटिटीज A and B are said to vary indirectly if the product of both the quantities, that is A and B, remains constant। पिछले बार आपने क्या देखा था, वहां पर दोनों का रेशियो A/B कांस्टेंट था, यहाँ पर A/B रेशियो कांस्टेंट नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट A और B का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, A एंड B। इनडायरेक्ट वेरिएशन, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वॉल है ना, 5 men build a wall in 10 days। 5 आदमी जो है वो एक दीवार को बिल्ड करता है कितने दिनों में, 10 दिन में। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग इफ आई पुट 1 man एट वर्क, सिर्फ एक आदमी, तो 1 man will build the same wall in how many days। तो एक आदमी उस दीवार को कितने दिन में बिल्ड करेगा? जब 5 आदमी दीवार को बिल्ड करता था 10 दिन में, तो एक आदमी उस दिन को कितने दिन में दीवार बिल्ड करेगा? डेफिनेटली कम दिन तो कभी नहीं ले सकता है, बहुत ज्यादा दिन लेगा। तो 1 man will take 10 multiplied by 5 days, that is 50 days। 5 आदमी अगर 10 दिन में करता है तो एक आदमी उसी काम को कम करने के लिए कितना दिन समय लगाएगा, 50 डेज लगाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, लेस मैन मोर मैन लेस डेज। अगर आदमी ज्यादा हो तो कम दिन में काम खत्म होगा, और लेस मैन अगर आदमी कम हो तो काम जो है वो मोर डेज में खत्म होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम लोग आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, और जो भी क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्ट वेरिएशन। मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। इसमें मेनली क्वेश्चंस है, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट वेरिएशन आपको बताया वैसा क्वांटिटी जिसमें
ए और बी, अगर कोई भी दो क्वांटिटी है ए और बी, और अगर दोनों का रेशियो यानी कि ए रेशियो बी यानी कि ए बाई बी कांस्टेंट हो तो वो जो है वो वेरी डायरेक्टली करता है। और इसके पीछे कंडीशंस आपको बता दिया चॉकलेट की एग्जांपल लेके। ज़्यादा चॉकलेट खरीदिएगा आपको ज़्यादा प्राइस देना होगा, कम चॉकलेट खरीदिएगा कम प्राइस देना होगा। ज़्यादा पेन्स खरीदिएगा ज़्यादा प्राइस लगेगा, कम पेन्स खरीदिएगा कम प्राइस लगेगा। सो दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Very good example and a very easy example as well. If the cost of 9 toys is rupees 333, find the cost of 16 such toys. ये है आपके पास क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज रुपीज 333, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉय। तो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी। अगर 9 टॉयज का कॉस्ट है 333 तो एक टॉय का कॉस्ट निकालेंगे। वी कैन राइट द स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज इक्वल टू रुपीज 333, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय का प्राइस कितना हो जाएगा, रुपीज 333 डिवाइडेड बाई 9 से काट देंगे। 9 3 जा 27, बचा कितना 6 एंड 3 63, 9 7 63। तो एक टॉय का प्राइस कितना आ गया 37। अब आपको निकालना कितने प्राइस है, कितना टॉयज है 16 टॉयज। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई। कॉस्ट कितना है 37 एक टॉय का, याद रखिएगा। Hence, cost of 16 toys is equal to rupees, एक का प्राइस कितना था 37 मल्टीप्लाइड बाई 16। 37 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना हो जाएगा, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 112 का 2 कैरी कितना 112, 11 16 3 जा 48, 10 58 and plus 159, 592 rupees. This is the cost of 16 toys. I hope it is clear. Let's take some other example as well. A train covers a distance of 51 kilometer in 45 minutes. How long will it take to cover 221 किलोमीटर। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सो काइंडली मैसेज मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जब तक आप नहीं पूछिएगा हमको समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए आप कमेंट करके या मुझको मैसेज करके जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, और कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हो कि आपको फिर से पढ़ना है, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके भेजिए। मैं एक स्पेशल वीडियोस पे बना दूंगा आप लोगों के लिए एज अ रिविजन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। एक ट्रेन जो है वो 51 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 45 मिनट्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। तो 221 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना समय लगेगा ये बता रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान है। आप सबसे पहले एक यूनिट का निकालिएगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी क्वांटिटी दिया होता है, जो भी क्वांटिटी हम लोगों को निकालना होता है, हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है 221 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 51 किलोमीटर में कितना समय लगा 45 मिनट्स। हम लोग किलोमीटर को किधर रख लिए, लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पर है क्या
221 यहाँ पर भी किलोमीटर है। अगर यहाँ पर मिनट्स होता तो हम लोग मिनट्स को लेफ्ट हैंड साइड आप कैसे भी बना सकते हैं। दिस इज माई मेथड, ताकि इससे काम आसान हो जाए और एक ही तरीके से सारा क्वेश्चंस को बनाया जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। आपको 221 किलोमीटर निकालना है, इसमें कितना दूरी जाएगा, तो 221 किलोमीटर, इसलिए मैंने इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड रखा है। तो 51 किलोमीटर में कितना, 51 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना मिनट चाहिए, 45 मिनट। तो 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना मिनट चाहिए, आप बताए। आप स्टेटमेंट अगर नहीं लिखिएगा और इस तरीके से समझा कर बना दीजिएगा तब भी बिल्कुल सही होगा। 51 किलोमीटर कवर करने के लिए 45 मिनट, तो 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना मिनट, कम की ज़्यादा, कम की ज़्यादा। यहाँ 51 में 45 मिनट था, सिर्फ 1 किलोमीटर कवर करना है, बहुत कम। कम का मतलब मल्टीप्लाई के डिवाइड, 45 डिवाइडेड बाई 51 मिनट। बहुत सारे बच्चे अब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको छोड़ दीजिए, सॉल्व नहीं करिए। 1 किलोमीटर कवर करने में 45 बाई 51 मिनट लगा। एम आई क्लियर? अब आते हैं देयरफॉर कितना किलोमीटर कवर करना है, 221। देयरफॉर 221 किलोमीटर में कितना, 221 किलोमीटर के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये तो एक का था ना, ये पूरा क्वांटिटी किसका था, एक का था। अब आपको जाना कहाँ है, 221 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 221, और मिनट कहीं नहीं जाएगा, मिनट आपके पास रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। 51 किलोमीटर जो है वो 45 मिनट में, तो 1 किलोमीटर बहुत कम समय में बहुत कम के लिए डिवाइड 45 डिवाइडेड बाई 51। जब 1 किलोमीटर इतना मिनट में कवर करेगा तो 221 किलोमीटर कितना, डेफिनेटली ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया 45 बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 221। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको? डेफिनेटली। किससे डिवाइड करें बोलिए, 17 से कर सकते हैं क्या, 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17, बचा कितना, 18 19 20 21 22, 5 और 1 51। फिर से 17 3 जा 51, 3 से काट सकते हैं क्या इसको, 15 3 जा 45, बचा कितना बच्चों, 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 मिनट्स। क्या आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई? डेफिनेटली आप सबको आता है। 13 5 जा 65, 65 का 5 कैरी कितना, 6, 13 1 जा 13, 13 प्लस 6 6 7 8 9 195 मिनट। मल्टीप्लाई आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर मल्टीप्लाई कहीं हो जाता है तो आप इसको सुधार दीजिएगा या कमेंट में कर दीजिएगा, डेट विल बी वेरी गुड। इससे ये समझ में आएगा हमको कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, सारे कैलकुलेशंस को ध्यान से देखते हैं। अगर कहीं मेरे से गलती भी हो जाए या कहीं हम जानबूझकर कहीं गलती भी कर लें तो हम ये नोटिस करना चाहते हैं कि कितने सारे बच्चे जो है वो वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। जैसे कि हमको मालूम है ये 195, अगर मान लीजिए गलती से मैंने 295 लिख दिया तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कमेंट करेंगे कि सर ये गलत है, हम ये देखना चाहते हैं। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, दिस विल बी 195 मिनट। अब आपको मालूम है कि मिनट है, मिनट को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड, तो 195 डिवाइडेड बाई 60। अब आप कर लीजिएगा, 60 से डिवाइड कर लीजिएगा 195, 63 जा 80, 180 बचा 50, तो कितना हो गया, 3 आवर्स और 10 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो उस ट्रेन को 221 कवर करने के लिए कितना मिनट लगेगा, 3 आवर्स और 50 मिनट। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो। द क्वेश्चन is very easy. 15 men can build a 16.25 meter long wall up to a certain height in one day.
हाउ मेनी men should be employed to build a wall of the same height but the length (26 meters) in one. ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। The question is saying 15 men can build a 16.25 meter long wall up to a certain height. दीवार कितना लंबा है? 16.25। तो उस दीवार का कुछ ना कुछ हाइट होगा, आपको हाइट को कांस्टेंट मानना है। हाइट का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। You have to take height as a constant. So a man have 15 men can build a wall that is 16.25 meter long wall. इतने लंबे वॉल को बिल्ड करता है in one day, एक दिन में। 15 men 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल को बिल्ड करता है एक दिन में। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ सेम हाइट, उसी हाइट का दीवार को बिल्ड करना है, इफ द लेंथ ऑफ 26 मीटर इन वन डे। अगर 16.25 मीटर वॉल को बिल्ड करने के लिए 15 मेन चाहिए, तब वो दीवार एक दिन में बिल्ड हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल जो है उसको बिल्ड करने के लिए 15 मेन चाहिए, तो काम एक दिन में खत्म होता है। अगर हम इस दीवार की लंबाई को और बढ़ा दें और कितना कर दें 26 मीटर, और फिर भी बोले कि काम खत्म करना है एक ही दिन में, तो आप बोलिएगा कि कैसे होगा, जब 16.25 मीटर वॉल 15 आदमी एक दिन में कर रहा था और आप बोल रहे हैं सर कि 26 मीटर आप काम करो, तो बहुत देर तक रुक कर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रुकने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर और लेबर को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कितना और ज्यादा लेबर लगेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक ही दिन में हमको निकालना क्या है 26 मीटर। फिर से ध्यान रखिएगा, मेन को पहले नहीं रखेंगे किसको, मीटर को रखेंगे। तो 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल 50 मेन। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना है 26 मीटर, तो इसको पहले रखते हैं। 16.25 मीटर वॉल को बिल्ड करने के लिए कितना मेन चाहिए 15 मेन। आप बोलिए अगर हम सिर्फ 1 मीटर वॉल को बिल्ड करें तो कितना आदमी चाहिए, बहुत कम आदमी चाहिए। 16.25 मीटर के लिए 15 मेन, तो सिर्फ 1 मीटर दीवार को बिल्ड करने के लिए कितना आदमी, बहुत कम। तो बहुत कम के लिए डिवाइड 15 डिवाइडेड बाई 16.25 मेन। 16.25 मीटर वॉल के लिए 15 आदमी, सिर्फ 1 मीटर दीवार की अगर बात करें तो 15 डिवाइडेड बाई 16.25, क्योंकि बहुत कम है और कम का मतलब डिवाइड और ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई। तो 15 डिवाइडेड बाई 16.25, देयरफॉर 1 मीटर के लिए इतना आदमी था। आपको वॉल बिल्ड कितना करना है 26 मीटर, देयरफॉर 26 मीटर के लिए कितना चाहिए, जब 1 मीटर के लिए इतना तो 26 मीटर के लिए ज्यादा की कम, ज्यादा के लिए 15 डिवाइडेड बाई 16.25 मल्टीप्लाइड बाई 26। आप सब सॉल्व कर सकते हैं। 15 बाई 1625, डेसिमल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1 टेंस 100, डबल जीरो लगा दें, मल्टीप्लाइड बाई 26। 5 3 जा 15, डबल जीरो, 5 3 जा 15, बचा 1 और 2 12, 5 2 जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट सकते हैं, 5 6 जा 36 की बार में, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर से 5 से 12 बार में और 5 से 13 बार में, 13 2 जा 26, क्या मिलेगा 12 2 जा 24 में, 24 में। तो 26 मीटर वॉल बिल्ड करने के लिए कितना मैन चाहिए 24 मैन। 24 men are required to build
the wall of 26 meter in length and the same height. तो 26 मीटर बिल्ड करने के लिए कितना मेन चाहिए? 24 men. Thus 24 men are required to build the wall of 26 meter in length and the same height. I hope it is clear to everyone. So this was today's video regarding unitary method. In the next video session we will again discuss about direct variation and few questions on direct variation, and then after we will study indirect variation. So till then, stay tuned for all the updates. Study sincerely, stay at home and do remember to watch the complete video. अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, kindly message me or comment me. I'll make a separate video on that particular topic. जब तक आप किसी भी वीडियो को बार बार नहीं देखिएगा आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, इसलिए do remember to watch the complete video till the end. Thank you. Have a good day.